देता हूँ. So with no further ado, I would like to introduce once again Ameek from Mail Munch. Ameek, would you like to tell them about yourself and about today's session? Thank you very much, Numair, for the very kind introduction. So like Numair said, we're here focusing on mainly the importance of email marketing and how it kind of contributes to the success of any business. I have been working with MailMunch for the past 3 years in the capacity of head of product. And like Numair said, we have here with us today Huda, Zainab, and Usman, who represent our product and marketing teams as well as our HR here. So I think we're good? Okay. So I think without further ado, let's just get started with today's session. So like we said, we're here today to talk about the importance of having an email marketing strategy and kind of knowing the place we're in. The context that we'll be talking about this is mainly in the SaaS product and SaaS business space. Let me know if you guys can hear me properly or not. So शुरू करते हुए I would just like to kind of start with the assumption कि आप लोगों में से कुछ लोग probably feel करते होंगे कि email marketing in general is a very important part of the success of any product or business, right? So some of you might fall in that camp. Some of you might fall in that camp जो कहते हैं कि email marketing might not be a very important part of why a business may work or may not work. तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं, if you could just raise your hands to tell me कि कितने लोगों का ख्याल है कि email marketing is a very important part of any business strategy. Cool. All right. और अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने लोग हैं who feel like email marketing might not be that important for the success of a product? You are. Okay, cool. So I think we're going to try and convince you today otherwise, right? Okay. So every SaaS business needs to have an email marketing strategy. अब मैं उससे email marketing strategy कह रहा हूँ, but what do I mean by an email marketing strategy? Email marketing strategy consists mainly of kind of 3 categories of emails, right? The very first category of emails are what we call marketing emails. Then we have transactional emails. And then we have life cycle emails. So we're going to look into these in detail कि ये तीनों types क्या-क्या होती हैं and how you can execute them. But उससे पहले what we need to establish is कि क्यों email marketing? Why do we even need email marketing in the first place, right? Email marketing has proven to be time and time again the best marketing channel for any business. The returns that email marketing can generate, no other marketing channel can even close to compete with these kinds of returns. So a very easy way of measuring returns on any channel, be it social media or ads or anything, is how much money you put in and how much money you make, or how much return you can make on that money, right? For example, on social or search ads, the best kind of return that you can expect is somewhere between the 2x or 3x range. So you put in $1 and you make $3 off of that on average, okay? For emails, research is done almost every year. And even in the year 2022, emails have proven to generate 42 times the money that you put in. So for every $1 that you put into email marketing, it has the potential of generating $42 for you in return, right? So अब हम बारी-बारी उन email types को देखते हैं जिनकी हमने शुरू में discussion की थी. सबसे पहले transactional emails. Transactional emails are service-based emails जो कि किसी भी product space में एक kind of essential part है. You really can't build a product without having transactional emails. For example, password recovery emails. Every product requires a password, and when you have a password and you have users, they have the potential to forget the passwords.
So you need to give them a way to recover. कि वो password जो भूल चुके हैं तो उन्होंने उसको recover किस तरह से करना है. Or you need to send them reminders that it's time to pay for your subscription, right? Or a lot of apps these days कहते हैं कि जब आप sign up करते हैं you need to verify your email address. तो फौरी तौर पे एक email आ जाती है आपको जिसमें you click on a link और आपका account verify हो जाता है. So these are essential parts of any product experience, but they're more service-based emails, जिनको हम transactional emails कहते हैं. Okay? The second type, जिसको हम थोड़ा सा मज़ीद detail में देखते हैं, those are marketing emails. Marketing emails are emails that are sent to a wider audience of people who may or may not be your users, right? So they may be at different points inside of their buying journey. They may not be active users, or they may be active users and even paying users, right? So for example, emails about new features जो कि आपकी product में add हो रहे हैं, yeah? So जब भी आप you're working hard on your product और आपने कोई नए features बहुत मेहनत करके 2-3 महीने बना के जब लगा के बनाए and launch किए, you want the world to know कि हमने we've now got an even better product compared to what we had, let's say 2 months ago, 3 months ago, right? So ये feature updates उनको announce करने के लिए use होती हैं, to let the world know, okay? Secondly, and again an essential part of any email strategy, are promotional emails. On and off हर तरह की product को, हर तरह के brand को sales promotions run करनी पड़ती हैं. That's the kind of market that we live in. That's the kind of competition that we have. And that's the kind of expectation that users have kind of come to kind of expect is that at some point, maybe on a Christmas or on a Black Friday or something, कभी ना कभी तो इस product की कोई ना कोई promotion आएगी. कोई 20%, 30% off का कोई coupon आ जाएगा, कोई discount लग जाएगा. When you want the world to know about your sales promotions, तो आप इस तरह की emails भेजते हैं. ये भी marketing emails का हिस्सा है, right? Marketing emails, like I said, are a very integral part of any email marketing strategy. Be it a SaaS product or not a SaaS product, but marketing emails हर किसी को चाहिए होती हैं, because that's the face that you show to your audience. That's how you kind of make sure that you stay top of mind. जब भी उन्हें कोई solution चाहिए, तो at least they remember कि उन्होंने recently आपकी email देखी है. So this is an essential part of any email strategy. And then thirdly, we talked about life cycle emails, right? What are life cycle emails? Life cycle emails वो emails होती हैं जो आपके किसी एक particular user की journey को follow कर रही होती है, which enables you to send very targeted and very relevant messages to your users, right? So I'm saying users instead of a general audience, because ये वो लोग हैं who have now chosen to use your product, and to keep them engaged, to keep them coming back for more is a completely different ball game, right? So अब life cycle emails की कुछ examples देखते हैं कि क्या होती हैं. Very simply, I think the most basic kind of a life cycle email are onboarding emails. Onboarding emails आपको help करती हैं to make new users feel welcome. जब वो sign up करते हैं, to let them know how to get started. शुरू में in their journey, on their first day, second day, third day, उनको क्या-क्या important चीजें they need to know to get the most out of your product. ये onboarding emails का काम होता है, right? Because I'm sure some of you here in the audience are working on your own products, right? तो आप लोगों को as product managers या product owners या people who are in general connected with some kind of product or a SaaS-based business, आप लोगों को ये idea होगा कि with the kind of attention spans जो आजकल लोगों के होते हैं, you need to make sure कि जैसे ही कोई बंदा आपके platform पे आया है, you make them feel the benefit of that product as soon as possible. उसके लिए आपको उनकी hand holding करनी पड़ती है, उनको बताना पड़ता है, and that's what onboarding emails are for.
right? उसके बाद फिर आती हैं trial activation emails. So a lot of products these days, they work on different pricing models, जिनमें से कुछ free trial वाले model पे काम कर रही होती हैं कि आप sign up करते हैं और कहते हैं जी you get a 14-day free trial. उसके बाद you'll need to start paying. कुछ products freemium model पे काम कर रही होती हैं, which means technically that product is free to use for as long as they want. लेकिन कुछ advanced features वगैरह use करने के लिए then they need to start paying, right? For example, if some of you are familiar with Mailmunch also for the longest time has been on a premium model, right? I'm sure all of you here are familiar with Spotify, right? Okay, so Spotify is probably the most premier music streaming app that's out there. Finally, Pakistan mein bhi aa gayi hai, which is a happy day for all of us, I believe. So even products like Spotify, जिनकी अपनी ब्रांड रिकॉल ही इतनी है कि आप Spotify का नाम सुनते हैं और आपको पता है कि आपने इस ऐप पे क्या करने के लिए जाना है. When you sign up to Spotify and you start listening to their free version, जिसके अंदर ads वगैरह चल रहे होते हैं म्यूजिक के बीच में, even companies like Spotify need to send you an email to remind you कि वो थोड़े से पैसे देके आप ads remove भी कर सकते हैं, right? So big brands, small brands, startups or established companies or products, these kinds of emails, जिनको हम life cycle emails कहते हैं, ये हर तरह की product के लिए essential हो जाती हैं. Another example are emails that encourage users to use some of the more advanced features of the app, right? So इसका मकसद basically ये होता है कि every product is designed कि वो कोई एक problem, कोई एक main problem solve करेगी and then maybe some more of the smaller problems that you have. For example, Mailmunch ही अगर आप ले लें, तो Mailmunch solves the problem of lead generation, it solves the problem of email marketing, and then it also solves the problem of email automations, right? So जब हम लोगों को on board लेके आते हैं on a freemium model, तो technically तो वो हमारे product से forms बना के they can immediately start using without paying us anything. But then we remind them कि just by paying a small subscription fee, आप premium templates unlock कर सकते हैं और आप advanced email validation type features use करना शुरू कर सकते हैं. So इनका purpose basically होता है to get your users deeper and deeper into your product and into your platform, right? क्योंकि जब एक यूजर आपकी प्रोडक्ट के बहुत सारे फीचर्स यूज करना शुरू हो जाएगा, उसके साथ फुली एंगेज हो जाएगा, at that point it becomes more and more difficult for them to leave your platform. उनके जो exit है वो मुश्किल होता है. It becomes a bigger consideration. अगर मैं Mailmunch के सिर्फ forms यूज कर रहा हूँ, मैं किसी भी दिन जाके कोई और प्रोडक्ट पिक कर लूंगा, लेकिन अगर मैं forms, emails, automations ये वो सारा कुछ यूज कर रहा हूँ, then it becomes a bigger decision for me कि अगर मैंने किसी और प्रोडक्ट पे मूव करना है, हर प्रोडक्ट का यही गोल होता है, right? And then we have milestone emails. Milestone emails again are a very important part of any email strategy because milestone emails help the product celebrate the wins जो आपके users उस platform से kind of जो benefit वो create कर रहे होते हैं, right? So like I said, कोई भी user आता है जब आपकी product use करने के लिए, तो वो कोई ना कोई problem solve करने के लिए आया. जब वो problem उनकी solve हो जाती है and you tell them and you celebrate that with them, तो it makes them feel like they're really connected to the platform. For example, अगर हम इसमें आखिरी वाली example देखें, Google Maps. Everybody knows what Google Maps is. They don't need to tell us by email कि Google Maps क्या है, right? But किसी एक बंदे ने जब Google Maps के किसी एक business पे जाके review छोड़ा and that review was seen 1000 times, they sent a congratulation email to that user to tell them कि वो जो review उन्होंने छोड़ा था, probably just out of the goodness of their heart because उनको कोई पैसे नहीं मिले वो review छोड़ने के, right? But they tell that user कि
1000 views आपके रिव्यू के हो गए and your review is helping in a big way. They make that user feel empowered. कि हाँ यार मैंने तो एक रिव्यू ही छोड़ा था लेकिन seems like I've touched at least 1000 lives just by leaving a small review, right? So that makes people engaged with your product or with your platform. ठीक है? So these were some examples of life cycle emails. But अब हमें देखते हैं कि लाइफ साइकिल ईमेल्स यूज करनी क्यों चाहिए. Why are they important? Life cycle emails have shown to be the most important driver of the success for any product, because that's the way you engage with your users, with people who have, like I said, made the choice to use your platform. So it helps you very rapidly activate these new users. कि जैसे ही किसी ने साइन अप किया फौरी तौर पे आप उनको एंगेज करें और उनको पहले विन मोमेंट या जो आहा मोमेंट होता है उस पर पहुंचाएं यूजर्स को. सो दे फील इमीडिएटली कि हाँ यार मैं एक मसला हल करने आया था एंड आई फील लाइक यस दिस वाज बेनिफिशियल फॉर मी. सो आप रैपिडली एक्टिवेट कर सकें अपने नए यूजर्स को. इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस यूजर चर्न. यूजर चर्न हम जो टर्म बोलते हैं वो एसेंशली उसका मतलब ये है कि आपकी प्रोडक्ट की एक्टिव यूजर्स इनएक्टिव हो जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, अबैंडन कर देते हैं आपकी प्रोडक्ट. हो सकता है वो किसी कंपीटिंग प्रोडक्ट के पास चले जाएं, हो सकता है वो आपकी प्रोडक्ट छोड़ के दे माइट नॉट हैव द रिक्वायरमेंट फॉर एनी सच ऐप और प्रोडक्ट, बट दीज आर पीपल हु अबैंडन एंड लीव. तो लाइफ साइकिल ईमेल्स जब आप उनको रेगुलरली एंगेज रख रहे हैं इन अ वेरी पर्सनलाइज्ड मैनर, तो दे हेल्प यू रिड्यूस यूजर चर्न. बाय डूइंग दिस they help you improve the overall satisfaction of the users on your platform. और ये सारा कुछ ultimately impacts your bottom line, which is it helps you increase your customer lifetime value. Customer lifetime value होती है कि जब आपका यूजर एक दफा आपके प्लेटफॉर्म पे आया और उसने पैसे देने शुरू कर दिए तो वो ऑन एवरेज कितनी देर आपकी प्रोडक्ट या आपकी ऐप के साथ एंगेज रहते हैं और आपको एक्टिवली पैसे देते रहते हैं. सो द मोर यू इंक्रीज और पुश फॉरवर्ड योर कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, उतने आपके नेचुरली बिजनेस का साइज और रेवेन्यू जो है वो ग्रो करता जाता है. तो हर बिजनेस की अल्टीमेटली बॉटम लाइन इज दे ऑब्वियसली वांट टू मेक मनी. दैट्स व्हाट वी ऑल ऑफ अस आर हियर फॉर, राइट? सो जो हमने पहले डिस्कस किया मार्केटिंग ईमेल्स. Marketing emails are very, very important to do because they serve some very important purposes. But marketing emails are also easy to do because हमने example देखी थी कि आप feature updates भेज रहे हैं. You're telling people कि नए features आ गए हैं product में. That does not require कि आपको बहुत ज़्यादा आपको segmentation करने की ज़रूरत है अपनी list की, right? It doesn't matter कि आप feature update की email free users को भी भेज दें, premium users को भी भेज दें, कोई फर्क नहीं उससे पड़ता. आप एक्टिव यूजर्स को भी बता दें क्या नए फीचर्स आए हैं और आप उन लोगों को भी वो ईमेल भेज दें जो अभी आपके यूजर्स नहीं हैं. व्हेन दे गेट टू नो कि नए फीचर्स आ गए हैं, दे माइट कन्वर्ट एंड स्टार्ट यूजिंग योर प्रोडक्ट, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट डज नॉट रिक्वायर कि कोई बहुत एडवांस सेगमेंटेशन आपको अपनी लिस्ट की करनी पड़ेगी मार्केटिंग ईमेल्स को अचीव करने के लिए, राइट? सो सम ऑफ यू आर प्रॉब्ली ऑलरेडी familiar with the platform MailMunch. MailMunch is a platform that's built around marketing emails. It allows e-commerce store owners, it allows content creators, blog owners to send marketing emails to their email lists. ठीक है? Life cycle emails, लेकिन life cycle emails are another beast. Life cycle emails, if you want to do them well, they're very, very difficult to properly execute. Kyun? Because one, life cycle emails need to be timed perfectly. Right? आप ऐसे नहीं कर सकते कि मंडे को सुबह 10 बजे ये वाली ईमेल चली जाए, because आपको नहीं पता आपका यूजर उस वक्त क्या कर रहा है. You need that email to land exactly जिस वक्त आपके यूजर ने कोई important action लिया है.
आपकी प्रोडक्ट के अंदर. फॉर एग्जाम्पल साइन अप किया, तो आप ये नहीं कर सकते कि जिन्होंने साइन अप किया था एक ही इकट्ठे ही मंडे को उनको ईमेल कर देंगे. इट डजंट वर्क दैट वे, बिकॉज वी एक्सपेक्ट के ईमेल आएगी, ऐसे करके मैं अपना इनबॉक्स आई पुल इट डाउन टू रिफ्रेश और ईमेल आ गई होगी. That's what people have come to expect, right? And secondly, they need to be contextually very relevant to the user. कि यूजर उस वक्त जो precisely एक्शन ले रहा था आपकी प्रोडक्ट के अंदर, हम exactly उसी स्पेस, उसी एक्शन के बारे में उससे कम्युनिकेट और कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, right? Which means कि लाइफ साइकिल ईमेल्स जो हैं, they need to be driven by the data that your users generate. इसके अलावा there's no way of doing or executing life cycle emails. और why is user data important life cycle emails के लिए? It's important because हर user जो आपकी प्रोडक्ट पे आता है, वो अपनी कोई एक यूनिक फ्लो या कोई एक यूनिक जर्नी ले रहा होगा थ्रू योर प्रोडक्ट, राइट? आपको नहीं पता कि हर यूजर आएगा, वो पहले इस बटन पे क्लिक करेगा और ऐसे ऐसे जाएगा और हम उनको इन टाइम्स पे ये ईमेल्स भेज देंगे. इट डजंट वर्क दैट वे, राइट? एंड सेकेंडली, इन टुडेज स्पेस दैट वेयर इन, हर यूजर ये एक्सपेक्ट भी करता है कि दे विल बी स्पोकन टू one-on-one, which means जब उनको ईमेल आएगी तो उस ईमेल they should feel कि वो ईमेल स्पेसिफिकली उनके लिए लिखी गई है. It's been crafted in a way कि वो एक सोल रेसिपिएंट थे उस ईमेल के. So they feel that personal connection with that product, right? So अब इस सारे को एक छोटे से एग्जाम्पल में contextually जरा डिस्कस करते हैं. So let's say some of you are working on a ride hailing app. So something like Bikeya, InDriver, Careem, Uber type कोई एक ऐप है जिसपे जो हम बना रहे हैं. अब let's look at the flow जो इस ऐप का हो सकता है, right? So let's look at a generic flow. वो ये होगा कि एक यूजर साइन अप करता है, right? यूजर साइन अप करने के बाद अपना अकाउंट वेरीफाई करता है, ठीक है? अकाउंट वेरीफाई करने के बाद वो अपना प्रोफाइल कंप्लीट करता है, अपनी पेमेंट इन्फो डालता है, अपना कार्ड शार्ट उसके अंदर सेट करता है. उसके बाद अगर आपके ऐप के अंदर कोई रेफर अ फ्रेंड टू गेट 100 रुपीज़ ऑफ योर फर्स्ट राइड टाइप का कोई फीचर है तो फ्रेंड को भी रेफर कर लेता है. उसके बाद फिर वो अपनी राइड बुक करेगा पहली, फिर वो अपनी पहली राइड कंप्लीट करेगा, फिर वो उस राइड पे रिव्यू छोड़ेगा और फिर एट सम पॉइंट वो शायद अपनी पहली 15 राइड्स भी पूरी कर ले, राइट? सो अगर आप लेट्स से यू आर बिल्डिंग द नेक्स्ट उबर और करीम, आप एज प्रोडक्ट मैनेजर्स आपके जहन में शायद होगा कि दिस इज व्हाट योर यूजर विल डू. वो इस तरह आएगा और प्रिसाइसली इस ऑर्डर को फॉलो करेगा आपकी ऐप को यूज करने के लिए, राइट? बट देन व्हेन द ऐप गोज इनटू द हैंड्स ऑफ रियल लाइफ यूजर्स, that's hardly what happens, right? जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो कभी भी नहीं होता, कोई नया होता है. फॉर एग्जाम्पल, एक यूजर आता है, वो साइन अप करता है, वो वेरीफाई करता है, वो अपना प्रोफाइल कंप्लीट करता है, बट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो क्रेडिट कार्ड ऐड करेगा, फिर कोई फ्रेंड्स को रेफर करेगा, बट उसने जाके अपनी पहली राइड बुक कर ली, राइट? दिस माइट बी द गाय जो यूनिवर्सिटी के बाहर गर्मी में खड़ा हुआ है, उसको इस वक्त इस बात से गर्ज नहीं है कि मेरे फ्रेंड्स को भी मैं बुला लूँ प्लेटफॉर्म पर. उसको ये है कि गाड़ी आए और मैं निकलूँ यहाँ से, राइट? तो वो राइड बुक करेगा, कंप्लीट करेगा, रिव्यू भी नहीं छोड़ेगा क्योंकि घर पहुंच गया, उसने कहा मैं जरा AC लगा के बैठता हूँ, रिव्यू देना भी भूल गया, राइट? यू कांट प्रेडिक्ट बिकॉज एक यूजर है जिसने यही करना है. फिर एक और यूजर है लेट्स से जो आपके ऐप पे आके साइन अप भी कर लेता है, अपना अकाउंट भी वेरीफाई कर लेता है, अपना प्रोफाइल भी कंप्लीट कर लेता है और फिर पहली राइड भी बुक कर लेता है, लेकिन वो फिर राइड कंप्लीट ही नहीं करता, कैंसिल कर देता है. अब आप तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक राइड आई है तो वो राइड कंप्लीट भी होगी, राइट? वह हो सकता है ये वो वाला यूजर है जिसके दोस्तों से कहा था मैं आ रहा हूँ तुझे लेने, और उसका फ़ोन उठाना बंद कर दिया और उसने पैनिक में आगे राइड तो बुक कर ली लेकिन आ गया फिर फ़ोन, तो उसने कहा कैंसिल, राइट? सो ये वाले यूजर्स भी हो सकते हैं इन द रियल वर्ल्ड. एंड देन वी ऑल नो
कि ये वाले यूजर्स भी होते हैं इन द रियल वर्ल्ड जो साइन अप तो कर लेते हैं, उसके बाद अकाउंट भी वेरीफाई करने की जहमत नहीं करते. सो हाउ डू यू प्रिडिक्ट, हाउ डू यू नो एग्जैक्टली कि कौन सा यूजर किधर है और क्या कर रहा है एट व्हाट पॉइंट, राइट? सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट देन you don't need an app that is just good at emails. Email sending is one part. Making use of your users' data is another integral part, जो आपको फिर इस केस में करना पड़ता है, right? उसके लिए the app that we've recently built, that's called Appflows. अब मैं थोड़ा सा आपको एक general overview देता हूँ about how it works, right? बट सबसे पहले Appflows डिफरेंट कैसे है बाकी ईमेल प्रोडक्ट से. Appflows is different because it lives on the intersection of user data and email marketing in a way that it combines the strengths of our legacy of the last 7 years that we've had in the email marketing space with your users' data to generate really magical experiences for your users. Appflows काम किस तरह से करता है? सबसे पहले तो आप अपने इवेंट्स, इंपॉर्टेंट एक्शंस इन योर यूजर्स जर्नी, जिनको हम वैल्यू जनरेटिंग एक्शंस भी कहते हैं, वो आप Appflows को सेंड करेंगे थ्रू अ वेरी सिंपल API. सो आप कहेंगे जी ये एक इवेंट का नाम है और ये यूजर है जिसने ये इवेंट इनिशिएट किया. सो इन दिस एग्जांपल अ यूजर जिसका ईमेल था jake@gmail.com, उसने पहला वर्कआउट स्टार्ट किया, विच मीन्स लेट्स से हम एक फिटनेस ऐप पे काम कर रहे हैं, राइट? उसने अपना पहला वर्कआउट स्टार्ट कर दिया. जब आप ये इवेंट हमें भेज देंगे तो उसके बाद आप आएंगे Appflows के अंदर एंड यू विल बिल्ड एन ऑटोमेशन दैट गोज विद दैट इवेंट. कि अच्छा ये इवेंट जब कोई यूजर आपकी फिटनेस ऐप के अंदर आके पहला वर्कआउट स्टार्ट कर देता है तो उसके बाद क्या ईमेल जानी चाहिए उसको, राइट? सो लेट्स से आपने को माइलस्टोन ईमेल भेजनी है, कुछ भेजनी है, तो इट्स वेरी सिंपल टू डू. इट्स ऑल ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस. उसके बाद ड्रैग स्टेप्स, ड्रैग एंड डिजाइन योर ईमेल्स एग्जैक्टली इस तरह मेल मंच के अंदर भी होता है, एंड यू आर सेट टू गो. एंड देन यू जस्ट सिट बैक एंड यू watch the magic happen, right? What makes this really magical, in fact, is actually the Appflows API and how it connects to your app and sends us that data that your user is generating. So जिस तरह मैंने आपको बताया, very simply, an important event was taken inside of your product. आपने वो event हमें भेजा along with the email, because email is essential. हमने email के channel पे उनसे correspond करना है. So आपने email address हमें भेज दिया. Now Appflows knows that jake@gmail.com just started their first workout, right? But now imagine कि jake@gmail.com के बारे में हमें थोड़ा और information भी मिल जाए, right? So the API allows you to do is कि आप हमें any info related to that user वो भी भेज सकें. So instead of jake@gmail.com, अब हमें ये भी पता है कि इसका first name Jake है और Jake ने अपने लाइफ टाइम में using your app 6,452 calories burn किए, let's say, right? So now imagine the possibilities. Very simply, just instead of saying hi there in your email, you can say hey Jake, and that just adds a whole new level of personalization. कि जब आपको एक email आती है from a platform who knows your name and then addresses you by that name, you automatically feel कि यार ये email तो लगता है मेरे लिए ही आई है, personally लिखी गई है, just for me, right? And then imagine कि वो जो event था first workout started का, उसके बारे में भी आपके पास और information आ गई. So instead of saying कि जी workout start हुआ है, now you know कि वो एक आउटडोर साइकिलिंग का वर्कआउट था जो जेक ने इतने बजे स्टार्ट किया, एंड इन दैट वर्कआउट ही बर्न 273 कैलोरीज, एंड जियोग्राफिकली उसने दुनिया में यहाँ पे खड़े होकर वर्कआउट शुरू किया और यहाँ पे खड़े होकर खत्म किया. दिस then allows you to even further customize and personalize the emails or the communications that you
send to your users, right? This makes the Appflows API infinitely adaptable, which means any product can customize this to fit their needs. Because user data is essential. Like I said, lifecycle emails के लिए user data important है, and we've designed it in a way that this can be adapted to any kind of use case. And then it also makes it infinitely scalable, which means there's no limits on the number of events, on the number of properties, on the kind of information that you can send to the Appflows API, right? So I would like to hand it over to Huda now. She'll just do a very quick kind of demo to tell you guys how this works. Hello everybody, I'm Huda Shahzad. I work as junior product owner for MailMunch and now for Appflows. I'm here to show you जो सब अमीक ने कहा था. What अमीक said is, और जिससे हमें पता लगा कि लाइफ साइकिल ईमेल्स हमारे प्रोडक्ट्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं और वो हमारे प्रोडक्ट और यूजर की एंगेजमेंट को कितना इन्हांस कर सकती हैं. बट द पॉइंट इज कैसे, हाउ आर दे गोना डू दैट? एज प्रोडक्ट ओनर्स या बिजनेस ओनर्स, सबसे पहले अपने प्रोडक्ट में आपको क्या ऐसी चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है जिसके अगेंस्ट आप वो ईमेल्स या ईमेल जर्नीज इनिशिएट करेंगे. आई एम हियर टू टेक यू ऑन दैट जर्नी अपनी एक प्रोडक्ट के साथ. उससे पहले उससे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि वैल्यू जनरेटिंग एक्शंस क्या होते हैं. सो एज अमीक सेड कि एक राइड हेलिंग ऐप की एग्जांपल ले लेते हैं. उसमें एक राइड बुक करने तक के लिए एक यूजर को सिर्फ एक एक्शन नहीं लेना होता. देयर आर मल्टीपल एक्शंस दैट ही हैज टू टेक, लेकिन उन एक्शन में से कुछ एक्शंस एक्चुअली मीनिंगफुल मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे यू नीड टू एंगेज विद देम, और कुछ एक्शंस इतने मीनिंगफुल नहीं होते जहाँ पे यू नीड टू सेंड देम एन अननेसेसरी ईमेल. सो व्हेन ही बुक्स हिज फर्स्ट राइड, दैट्स अ माइलस्टोन. वहाँ पे यू नीड टू एंगेज विद देम. लेकिन प्रॉब्ली जब वो अपनी सेकंड या थर्ड या फोर्थ राइड बुक कर रहे हैं, if you are going to congratulate them every time they book a ride, that just takes the whole point out of that milestone thing. So आपने ये recognize कैसे करना है कि वो value generating actions कौन से हैं? उसके लिए मैं आऊँ. So हर ऐप में जो इस वक्त मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है, बेशक वो एक ट्रैवल एंड टूरिज्म ऐप है, या वो एक फिटनेस ऐप है, या वो किसी भी नीश की ऐप है, कुछ यूनिवर्सल वैल्यू जनरेटिंग एक्शंस हर एप्लीकेशन में एग्जिस्ट करते हैं. सो हम इस चीज से वाकिफ है कि हर प्रोडक्ट में साइन अप्स, लॉग इन, यूजर अपडेट्स एग्जिस्ट करते हैं. बेशक वो किसी भी नीश का प्रोडक्ट है, एक यूजर अपनी यूजर जर्नी में इन पॉइंट्स से जरूर गुजरेगा, और ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे आपने यूजर के साथ इंगेज करना ही है. बेशक आप राहगीर के प्रोडक्ट ओनर हैं, या फिर आप कॉन्टेंटली के हैं, या फिर आप किसी भी इधर इंक्यूबेशन सेंटर के किसी भी स्टार्टअप के ओनर हैं. आई जस्ट डिग योर नेम्स आउट, सो दैट्स व्हाई आई नो दैट. तो अब मैं आपको एक प्रोडक्ट के साथ ये डेमोन्स्ट्रेट करूंगी कि किस तरह से आपने वो पॉइंट्स रिकग्नाइज करने हैं, उनको इवेंट्स में चेंज करना है, उनकी अगेंस्ट जर्नीज बनानी है, और कैसे लाइफ साइकिल ईमेल्स एग्जीक्यूट करनी है सक्सेसफुली. Here who has a phone with connected internet and access to their email, करने लगे हैं वो ये है कि ये एक प्रोडक्ट है. What's your good name? शाहमीर का ईमेल एड्रेस हम यूज करेंगे इसमें लॉगिन करने के लिए, और आप और मैं एक साथ कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स या एक्शंस को रिकग्नाइज करेंगे इस जर्नी में, जिससे अमीक हमें लेकर जाएंगे एज अ यूजर. में एंटर होने का first point is always when a user signs up. This was the first important action that my user, that is Shamir, took, or we have achieved the first event, that is signed up. Next,
अक्सर प्रोडक्ट्स में जब यूजर साइन अप कर लेते हैं, द नेक्स्ट स्टेप यूजुअली इज कि उनको एक ऑनबोर्डिंग के ऊपर लैंड किया जाता है, जिसमें उनसे उनकी पसंद नापसंद और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो भी कुछ चाहिए वो लिया जाता है, सो दे कैन काइंड ऑफ गेट ऑन बोर्ड विद द प्रोडक्ट, विच इज द पॉइंट ऑफ ऑनबोर्डिंग. तो अमीक, अब आप वो प्लीज परफॉर्म कर दीजिए. सिंस ये एक पॉडकास्ट ऐप है, मेरी एजम्पशन अपने यूजर से यही है कि अगर उन्होंने आके साइन अप किया है, लॉग इन किया है और उसके बाद उन्होंने ऑनबोर्डिंग भी कंप्लीट कर ली है, तो अब वो पॉडकास्ट सुनेंगे, बिकॉज दैट्स द पर्पस ऑफ द ऐप. तो अब अगर वो ऑनबोर्डिंग कंप्लीट है, अब अगर वो किसी भी पॉडकास्ट लाइब्रेरी में जाते हैं और कुछ भी प्ले करते हैं, दिस इज एसेंशियली द पॉइंट जिधर उन्होंने मेरी एप्लीकेशन में आके अपना फर्स्ट माइलस्टोन अचीव किया है, which is they got an output out of my product that helped them. उनको कुछ सुनने को मिला है जिसके लिए वो आए थे. This is the point as a product owner that I need to celebrate with them. This is the point I would like to engage with them. So this is the point number 3 where I would like to engage. As Ameek said कि हम सारे business owners और product owners जितने भी applications बनाते हैं, eventually we want to get money out of them. So there's a free version and then also the premium podcast. To get access to them, the user needs to upgrade. This is a demo app. Surprise. We didn't put in too much effort into it. ये product हमने अपनी Appflows product का demonstration देने के लिए बनाई है. तो जब आप first podcast play करेंगे, definitely वहाँ पे first podcast play ही होगा और आपके कानों तक आवाज भी आएगी. ये जस्ट आप लोगों को एक प्रॉम्प्ट देने के लिए था कि दिस इज द पॉइंट कि उनका पॉडकास्ट प्ले हो गया. ठीक है, तो जब आप करेंगे प्ले तो आपको सुनने को ही मिलेगा. दैट्स अ गारंटी. अच्छा, अब शाहमीर सो फार मेरे प्रोडक्ट के अंदर 4 पॉइंट से गुजरा है. कैन एनी ऑफ यू रीआइट्रेट कि उनमें से 1 या 2 कौन से थे? इट्स फाइन. साइन अप, यस, वेरी गुड. ऑनबोर्डिंग, फर्स्ट प्ले, वेरी गुड. And the fourth one was, yes, the upgrade thing. So sign up, onboarding, first podcast played, and then upgrade. Shamir, can you open your mail जिस पे आपने और आपको okay, और वो उनके subjects क्या हैं? और दूसरा है फर्स्ट पॉडकास्ट. Sure. Yeah, we will be entertaining all the questions in the episode. हम साइन अप कर रहे हैं, आप नोटिफिकेशन मेल भेज रहे हैं, हम पॉडकास्ट सुन रहे हैं, आप मेल भेज रहे हैं, हम उसके बाद वाला स्टेप करते हैं, आप मैसेज या मेल भेज रहे हैं. तो इससे एक तो ये होता है कि मैं खुद पर्सनली मैं अपनी सेल्फ, क्योंकि व्हेन यू पुट योरसेल्फ इन कस्टमर शू, तो आपको पता चलता है कि यार क्या किस चीज़ से मुझे इरिटेशन होती है, किस चीज़ से नहीं होती है. क्योंकि यही सिंपल जो अभी आप कर रहे हैं पॉडकास्ट, ये चीज़ पिंटरेस्ट के ऊपर ये स्टार्टिंग में अप्लाई होता था. फिर ग्रेजुअली उन लोगों ने ये चीज़ें कम किया क्योंकि यूजर्स यहाँ इस चीज़ से डिस्टर्ब होके वो बैक करते थे या फिर अनसब्सक्राइब करते थे या आर्काइव करते थे. तो ये डिस्टर्बिंग नहीं है ज़्यादा क्योंकि अब सिर्फ 4 स्टेप हुआ है और 2 मेल रिसीव हुआ है. इससे आगे स्टेप्स होंगे, फिर मेल रिसीव होगा. इट्स क्वाइट डिस्टर्बिंग. ओके, interesting point and I agree with you. As a product owner या business starter, अथॉरिटी है और कंट्रोल है कि आप अपने यूजर के एक्शंस के अगेंस्ट कब ईमेल भेजी जानी है, कितनी भेजी जानी है और किस पॉइंट पे भेजी जानी है, उस चीज को कंट्रोल कर सकें. That's Appflows is all about. So मैंने तो ये डेमोन्स्ट्रेशन देनी थी, तो मुझे तो चारों इवेंट्स पे ईमेल्स लगानी थी. बट देन आई हैव द चॉइस कि मैं 1 सेकंड के अंदर वो चारों ईमेल्स बंद कर दूं. राइट नाउ आई कैन डू दैट. और शामीर फिर से इस जर्नी से गुजरेगा, उसको एक भी ईमेल रिसीव नहीं होगी. Yeah. ओके, सो हमारा प्रोडक्ट Appflows ये आपको इनेबल कर रहा है कि आप यूजर के हर एक्शन के अगेंस्ट ईमेल भेज सकें अपने प्रोडक्ट के अगेंस्ट. भेजना या ना भेजना और कौन सी ईमेल स्ट्रेटजी आप यूज कर रहे हैं, दैट इज टोटली अपॉन द प्रोडक्ट ओनर और द बिजनेस ओनर.
तो वो स्ट्रैटेजीज डिज़ाइन करना और किस तरह से ग्रेसफुली वो ईमेल्स को हैंडल करना, यूज़र एंगेजमेंट को किस तरह से इंटिमिडेटिंग नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा नहीं बनाना है, दैट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रैटेजी द प्रोडक्ट ओनर और द बिजनेस ओनर बिल्ड्स अप. प्रोडक्ट का काम इनेबल करना है, दैट वी आर डूइंग. और मैंने क्योंकि सारी लगा दी, मेरा प्रोडक्ट था, मुझे सब भेज के दिखानी थी. तो नेक्स्ट टाइम आई जस्ट स्किप टू एंड एनीथिंग. लोगों को शायद अंदाजा हुआ होगा कि जो लाइफ साइकिल ईमेल्स अमीक ने मेंशन की और किस तरह से वो ज़रूरी हैं और वो एंगेजमेंट के लिए क्यों इतनी ज़्यादा एसेंशियल हैं, और उसके बाद किस तरह से आपने अपने प्रोडक्ट के अंदर पॉइंट्स रिकग्नाइज करके उनको ईमेल्स और जर्नीज में कन्वर्ट करना है. प्रीवियसली ये सारा अपने प्रोडक्ट के लिए एज अ प्रोडक्ट ओनर सारे एसेंशियल पॉइंट्स रिकग्नाइज करने के बाद ये ईमेल्स भेजने के लिए और ईमेल ऑटोमेशंस बनाने के लिए एक बहुत ड्रेडफुल साइकिल में पढ़ना पड़ता था. दैट साइकिल वाज कि पहले मुझे A to Z लॉजिक बिल्डिंग करनी पड़ती थी, जो कि जो कि अजीज़ा ने जिस तरह से बताया कि किस तरह मैंने अपने यूज़र को ओवरबर्डन नहीं करना है बार बार ईमेल्स भेज के, और मेरी ईमेल्स उनको बिल्कुल रेलेवेंट टाइम पे जानी चाहिए और उनसे एंगेजमेंट बढ़नी भी चाहिए. मुझे वो सारी लॉजिक सोचनी पड़ती थी. देन आई हैड टू गेट माय डिज़ाइन टीम इन्वॉल्व्ड और फिर उनके टेम्पलेट्स बनवाने पड़ते. वो बनवाने के बाद आई हैड टू पुश इट टू माय इंजीनियर्स. उनको बैठ के वो सारी लॉजिक बिल्डिंग एक टिकट में लिख के देनी पड़ती थी, फिर उनको एक्सप्लेन करनी पड़ती थी, एंड देन दे यूज्ड टू डू द मैजिक. उसके बाद वो टिकट जाती थी मेरे QA टीम की तरफ, फिर वो उसे टेस्ट करते थे और वो लॉन्च होती थी और फिर QA से दोबारा वेरीफाई करते थे और वो फिर मुझे देखने को मिलती थी. आई डिडंट वांट टू डू इट एंड यू शुडंट हैव टू आइदर. उसका जवाब है Appflows. ये सारा साइकिल जो मैंने आपको अभी बताया है, मेरे लिए, मेरे प्रोडक्ट के लिए Appflows ने लेस देन 15 मिनट्स का बना दिया. मुझे ना किसी डिजाइनर को इन्वॉल्व करने की जरूरत है, मुझे ना किसी इंजीनियर को इन्वॉल्व करने की जरूरत है, एक्सेप्ट फॉर द सेटिंग ऑफ Appflows API. मुझे ना किसी QA को इन्वॉल्व करने की जरूरत है. मैं 1 मिनट में पूरी ऑटोमेशन जर्नी चेंज करके नई ईमेल बना के पुरानी ईमेल डिलीट करके उसे चेक करके एक्टिवेट कर सकती हूँ, डीएक्टिवेट कर सकती हूँ. इट्स लिटरली लाइक दैट. जैसे मैंने अजीजा को अभी बताया कि जिस तरह शाहमीर को 4 ईमेल्स रिसीव हुई हैं, मैं 1 मिनट में जाके उनमें से 2 ईमेल्स रिसीव हुई थी आपको शायद, मैं 1 मिनट में जाके उनको 4 भी कर सकती हूँ और उसको 1 भी कर सकती हूँ, उसको 0 भी कर सकती हूँ. सो द नेक्स्ट टाइम कोई भी नेक्स्ट यूजर आता है, उनको या तो कुछ नहीं रिसीव होगा या जो भी मैं प्लान करती हूँ. ये मेरे लिए आसान किया Appflows ने. अब मैंने NIC के कुछ स्टार्टअप्स को थोड़ा डिगअप किया था और मे बी उसके कुछ ओनर्स यहाँ पे होंगे, बिजनेस ओनर्स, प्रोडक्ट ओनर्स. मैंने कुछ यूज केसेस इकट्ठे किए हैं जो कि आप लोगों को बेहतर अंडरस्टैंड करवा सकते हैं कि Appflows और लाइफ साइकिल ईमेल्स आपके प्रोडक्ट के लिए किस तरह से रेलेवेंट हैं और किस तरह से वो उसकी एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं. ओके, सो ये एक फिटनेस ऐप है. आप में से कितने लोगों ने एम फिट की ऐप यूज की हुई है? इफ देयर इज सो यू यूज्ड इट. ओके, सो एक फिटनेस ऐप पे आप कैलोरीज भी अपनी रिकॉर्ड कर सकते हो, आपने जो खाया वो भी कर सकते हो, आप अपनी एक्टिविटीज भी कर सकते हो और आप अपने वर्कआउट्स भी कर सकते हो. सो लेट्स अज्यूम कि ये मिस लारा हैं और वो एक साइकिलिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है एंड नाउ शी इज अबाउट टू गेट डन विद हर वर्कआउट. व्हेन शी फिनिशेस हर वर्कआउट, Appflows enables you कि आप उनको एक माइलस्टोन ईमेल भेजें जो कि इसी तरह से एग्जैक्ट मोमेंट पे भेजी जा सकती है कि यू फिनिश्ड योर फर्स्ट वर्कआउट ऑन माय प्रोडक्ट, आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन दैट. और आप अपनी मैसेजिंग के थ्रू उनको इनकरेज भी कर सकते हैं कि वो आपका प्रोडक्ट इसी तरह यूज करते रहें. अगेन, ये एज अ प्रोडक्ट ओनर आपकी ईमेल स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है कि आप यूजर इंकरेजमेंट अपनी मैसेजिंग से कैसे बढ़ाते हैं. ओके, सो NIC का एक स्टार्टअप रहा है मौका ऑनलाइन, जो कि इस तरह की सर्विसेज आपको ऑफर करता था. सो लेट्स अज्यूम आप अपने घर में बैठे हुए और आपकी LCD फट गई है, खराब हो गई, टूट गई है और आपको जो है उसको रिपेयर करवाने के लिए एक रिपेयरर की ज़रूरत है. यू जस्ट गो ऑन द ऐप और आप उनको जो है वो बुक करते हैं. दे कम टू योर हाउस, वो सर्विस देते हैं और फिर वंस यू आर डन विद इट, आप अपनी ऐप
उस एप्लीकेशन से वो जॉब कंप्लीट कर देते हैं और पेमेंट भी कर देते हैं. If you see here, एक चीज ब्लिंक कर रही है, that's wait 10 minutes. Again, अब मेरी इसमें थिंकिंग ये थी कि अगर मेरे घर कोई वर्कर आके कोई काम कर रहा है and once they're done, मैंने उनको पैसे भी देने हैं, उन्होंने अपना सामान भी समेटना है, फिर उन्होंने जाना भी है, इस सब में कुछ 10 मिनट तो लग जाएंगे. तो मेरी रिव्यू की ईमेल जो रिसीव होनी चाहिए वो 10 मिनट के बाद होनी चाहिए. Appflows पे मैं ये भी कर सकती हूँ. So, पिछले एग्जाम्पल में मैं इमीडिएटली भी भिजवा सकती थी, इस एग्जाम्पल में मैं 10 मिनट का ले भी दे सकती हूँ, मैं वैसे कितने भी दिन मिनट्स और एवरीथिंग का दे सकती हूँ. दिस इज जस्ट टू गेट यू स्टार्टेड ऑन कि डिलेज एंड एवरीथिंग आप सब कर सकते हैं. इट्स दैट स्केलेबल एंड कस्टमाइजेबल. ओके, ये एक एग्जाम्पल एक ट्रैवल एंड टूरिज्म ऐप की है. आपका स्टार्टअप राहगीर था जिसको मैंने लुकअप किया था और दिस इज बेस्ड ऑन देयर जर्नी. तो अब एक यूज़र आया, एक मेरे जैसा यूज़र था पहाड़ों का शौकीन, उसने जाके अपनी ट्रैवल एंड टूरिज्म ऐप पे लॉगिन किया. और फिर उसने देखा और उसे बहुत अच्छी लगी और वो ब्राउज कर रहा है. लेकिन ब्राउज करने के बाद वो चला गया, उसने अबैंडन कर दिया उस प्रोडक्ट को, वो कभी वापस नहीं आया. वो क्यों नहीं आया, दैट्स अनदर थिंग. एज अ प्रोडक्ट ओनर आपकी अप्रोच है कि अब आपने उस कस्टमर को विन बैक करना है, अब आपने उसको अबैंडन कस्टमर को वापस अपने प्रोडक्ट पे लाना है. सो इधर आप देखेंगे कि इधर 30 डेज का वेट है. सो मैंने एज अ प्रोडक्ट ओनर इसके लिए जो जर्नी बनाई थी वो ये थी कि एक यूजर आया जिसके अगेंस्ट साइन अप का और साइन इन का इवेंट रिसीव हुआ, लेकिन अगले 30 डेज के लिए कोई और इवेंट रिसीव नहीं हुआ. दैट मीन्स वो मेरे प्रोडक्ट को अबैंडन कर चुका है. नाउ आई नीड टू विन देम बैक. ये वही एग्जाम्पल है जैसे अमीक ने बताया था कि एक बंदा धूप में बाहर खड़ा है और उसके दोस्त ने आने से मना कर दिया, उसने उसी वक्त ऊबर पे साइन इन किया है, लेकिन फिर दोस्त अचानक से आ गया तो उसने उसके बाद छोड़ दी एप्लीकेशन, उसने एक्सप्लोर भी नहीं की. उस तरह के कस्टमर्स को यू नीड टू ब्रिंग बैक, और वो आप Appflows के साथ कर सकते हैं. सो हमारी फोर्थ एंड लास्ट एग्जाम्पल जो है वो एक कंटेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन की है, जिसके अंदर जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि हर एप्लीकेशन में एक फ्री और एक पेड वर्जन होता है, और फ्री वर्जन की कुछ लिमिटेशंस होती हैं. सो फॉर दिस कंटेंट मैनेजमेंट ऐप वो 8 पोस्ट स्केड्यूल कर सकते थे. सो एट दिस पॉइंट दे आर स्केड्यूलिंग देयर पोस्ट, और उनकी 8 पोस्ट स्केड्यूल हो गई है, लेकिन अब वो अपना फ्री कोटा अवेल कर चुके हैं. नाउ इज द पॉइंट दैट आई एज अ प्रोडक्ट मैनेजर थिंक कि उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो अपग्रेड करें. तो आई वुड लाइक टू रीच देम आउट इस पॉइंट पे, और मैं हो सकता है कि 10-20% का डिस्काउंट भी फेंक दूं कि यार अपग्रेड कर लो, बिकॉज दे हैव बीन यूजिंग दिस प्रोडक्ट, उनके काम की है, तो दे हैव रीच्ड द कोटा एंड आई वुड लाइक देम टू कीप यूजिंग इट. ओके, सो ये लास्ट एग्जांपल थी, और मैं एक छोटे से नोट पे इस डेमोन्स्ट्रेशन और प्रेजेंटेशन को ख़त्म करना चाहूँगी, उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे, डोंट वरी. तो वो ये है कि वी एज प्रोडक्ट ओनर्स हैव बिन एज्यूमिंग यूजर्स की जर्नीज हमारे प्रोडक्ट्स पे. अमीक की एक पिछली एग्जांपल थी राइड हेलिंग ऐप की, जिसके अंदर 9 स्टेप्स थे. अगर हम 9 स्टेप्स की मल्टीपल्स में जर्नीज बनाने बैठें तो वो कुछ 32,000 बनती हैं. आप 32,000 एजम्पशंस के ऊपर ईमेल्स नहीं भेज सकते. You need your emails to be behavior driven. So it's 2022, guys. I think it's time to stop assuming and start predicting. Thank you very much. अपने questions and answers, anything that you guys might have, आप कर सकते हैं. Sure. Assalamu alaikum. Thank you for the great session. There were many things for us. Have been doing email marketing for the last 4 to 5 years, but still there are some new things. और मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि इसमें हम लोकेशन टारगेटिंग कर सकते हैं फर्स्ट,
सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि ये किस तरह से ऑप्टिन मॉन्स्टर से एप्फ्लोज डिफरेंट है? थैंक यू। ओके, सो टू योर फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपने कहा हम लोकेशन टारगेटिंग कर सकते हैं नहीं, यू कैन टारगेट और सेगमेंट योर यूजर्स बेस्ड ऑन जो भी आप प्रॉपर्टी भेजते हैं। तो अगर आप एप्फ्लोज को ये बता रहे हैं कि यूजर यूएस का है, यूके का है, कनाडा का है, यू कैन डू इट इन मल्टीपल वेज। तो या तो आप सिंपली हमें कंट्री का स्ट्रिंग भेज दें, राइट, या फिर आप हमें आईपी और उसकी रिजॉल्व लोकेशन भेज दें। लेट्स से देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ हैंडलिंग दैट, राइट। तो एज लॉन्ग एज आप वो इन्फॉर्मेशन एप्फ्लोज को या इस प्रोडक्ट को भेज रहे हैं, you can use it then to segment your lists, you can use it to personalize those emails, you can use it to split those automations उनको conditions वगैरह में use करके there are multiple ways of doing it. To your second point about how this is different from Opt-in Monster, Opt-in Monster जो है वो primarily एक lead generation tool है. It offers forms and it offers the technology to deploy forms on your website. आप exit intent और pop-ups और scroll boxes वगैरह इस तरह की चीजें कर लें, वो वाली capability MailMunch में भी है, but Appflows doesn't do forms. Appflows does just emails. ओके, आई थिंक सो ऑप्टिन मॉन्स्टर में भी ये है कि हम उसमें इवेंट्स ट्रिगर कर सकते हैं। लेट्स से अगर यूज़र एक वेब पे आता है तो वेब बेस्ड भी इवेंट्स ट्रिगर कर सकते हैं। हाँ, you're right. So ऑप्टिन मॉन्स्टर की जो स्ट्रेंथ है वो है आपकी वेबसाइट के ऊपर की जो पर्सनलाइजेशन है। तो आप वेबसाइट के इवेंट्स ऑप्टिन मॉन्स्टर को भेज सकते हैं, फिर जब आप इनको यूटिलाइज फिर वेबसाइट पे ही कर सकते हैं, विच मीन्स यू आर मेकिंग द असम्पशन कि वो यूजर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है दोबारा, तो फिर उसको वो नोटिफिकेशंस, पॉपअप्स वगैरह चीज़ें नजर आएंगी। ऑन द अदर हैंड एप्फ्लोज लैंड्स एन ईमेल इनटू देयर इनबॉक्स, विच मीन्स वो आपकी वेबसाइट पे होंगे या नहीं होंगे, उनको वो कम्युनिकेशन रिसीव होगी। That's the difference. Okay, thank you. मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि एप्फ्लोज के थ्रू आप इंफॉर्मेशनल ईमेल्स भी सेंड कर सकते हैं, क्योंकि आपने पूरी प्रेजेंटेशन में इंफॉर्मेशनल का जिक्र नहीं किया। So things like marketing emails, just like WP Beginner जो है वो आपको नाट के प्रोडक्ट पिच करता है, although वो आपको इंफॉर्मेशनल लेट्स से कि कोई टूल है किसी और का भी, तो वो उसको इंफॉर्मेशनल ईमेल करता है। लेट्स से नील पटेल मोस्टली करता है ये। जी, you're completely right. सो एप्फ्लोज के अंदर ऑटोमेशंस की सपोर्ट तो है ही, लेकिन साथ में बल्क ईमेल्स है जिनको हम ईमेल न्यूज़लेटर्स कहते हैं, उनकी सपोर्ट भी है। तो यू कैन यूज एप्फ्लोज फीचर अपडेट्स भेजने के लिए, अगर आपके ब्लॉग के कोई नए आर्टिकल्स वगैरह आपने राउंड अप भेजना है वो भेजने के लिए, प्रमोशन वगैरह ये वो, सो यू कैन सेंड आउट ईमेल ब्लास्ट एज वेल, वो भी कर सकते हैं। थैंक यू। ठीक है, ओके, मेरा क्वेश्चन ये था, बहुत सारे ईमेल्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जब ज़्यादा ईमेल हम कर रहे होते हैं तो ईमेल हमारा स्पैम में चला जाता है, जब प्रमोशनल हो या मार्केटिंग की हो कोई भी, तो आप इसको किस तरह से कवर करेंगे? आप ऐसा क्या करें कि आपका ईमेल ऑथेंटिकेट हो कि हाँ हमारा ईमेल स्पैम में नहीं जा रहा, और स्पैम में जब जाता है डेफिनेटली यूजर नहीं यूज करता और उसकी वैल्यू भी कम है। वेरी गुड क्वेश्चन। सो फॉर एनी ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म यू आर 100% राइट कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म टू इंश्योर कि अगर कोई ईमेल जा रही है उसके प्लेटफॉर्म से तो वो इनबॉक्स वाले टैब के अंदर लैंड करे, बस फेंक के ना आ जाए सर्वर के पास, बट एक्चुअली इंश्योर कि वो इनबॉक्स के अंदर लैंड करे। उसके लिए there are a lot of different variables that kind of go into ensuring कि आपकी email, जिसको हम email deliverability कहते हैं, आपकी email deliverability strong करने के लिए there are so many different things that go into it. आपके sender की IP की क्या reputation है, आपके sender की अपनी domain की क्या reputation है, आपकी subject line कैसी है, आपकी email का content कैसा है, there's lots of different things. प्लस आपके records जिनको हम DMARC, DKIM वगैरह चीज़ें कहते हैं on the technical side, DNS वगैरह, वो आपके प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड हैं या नहीं है। इसमें से कुछ चीज़ें ईमेल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म के कंट्रोल में होती हैं। फॉर एग्जांपल इंश्योरिंग कि बिफोर यू स्टार्ट सेंडिंग ईमेल्स हमने आपकी DKIM सेटअप करवा दिए हो, राइट। इंश्योरिंग कि आपकी जो ईमेल लिस्ट है आप उसको रेगुलरली क्लीन अप करते रहें, बिकॉज लेट्स से आपकी ईमेल लिस्ट पे 100 लोग हैं, आप उनको रेगुलरली ईमेल भेजते हैं, बट आफ्टर 2 मंथ्स ये रियलाइज कि उन 100 में से
60 लोग हैं जो आपकी ईमेल्स रेगुलरली ओपन करते हैं, 40 लोगों ने कभी ओपन नहीं की, राइट? तो जिसको हम अच्छी लिस्ट हाइजीन कहते हैं, इट काइंड ऑफ इंटेल्स कि आप उन 40 लोगों को निकाल के बाहर कर दें लिस्ट से, बिकॉज दोज आर अनएंगेज्ड रेसिपिएंट्स। तो ये सारे टूल्स ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म आपको इनेबल करता है, बट कुछ चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे जो डोमेन आप यूज़ कर रहे हैं उस डोमेन की अपनी रेपुटेशन क्या है। इफ इट्स ऑलरेडी ऑन अ ब्लैक लिस्ट लेट्स से, फिर ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म कुछ नहीं कर सकता टू इंश्योर कि वो इनबॉक्स में जाएगी। फिर वो ट्रैकिंग हो जाता है जब ये आपका ठीक है, तो मेरा API किसी तरीके से उनको पता चल गया, तो अब तो मेरे क्योंकि मैं हर इवेंट के ऊपर यूजर को ईमेल भी कर रहा हूँ, तो फिर तो मेरा डेफिनेटली वो स्पैमिंग में करेंगे, तो इसको कैसे टैकल करना? ओके, सो ये वाली चीज़ें जो आप कह रहे हैं, आपकी ईमेल का जो सेंडर आईपी है, सेंडर आईपीज़ की जो पूरी लॉजिक है वो हमारे बैकग्राउंड में हम कंट्रोल कर रहे होते हैं, एंड वी ऑलवेज इंश्योर कि हमारे जितने सेंडिंग आईपीज़ हैं हम उनको इक्वली लोड बैलेंस करें उनके ऊपर, तो इंश्योर कि किसी भी एक आईपी से बहुत ज़्यादा स्पैमिंग या बहुत सारी ऐसी ईमेल्स ना भेजें जिन पे यूजर्स एंगेज ना कर रहे हो। तो इट्स नॉट लाइक आवर प्लेटफॉर्म हैज जस्ट वन सेंडिंग आईपी, वी हैव अ पूल ऑफ सेंडिंग आईपीज़ जिन पे हम ओवरऑल ट्रैफिक डिवाइड कर रहे होते हैं, जिससे जब आपका एवरेज आउट होती है, सो मे बी आप तो बहुत अच्छी ईमेल्स भेजते हैं, सारी ईमेल्स ओपन होती हैं, लेकिन आपके साथ वाले भाई जो ईमेल भेजते हैं वो कोई ओपन नहीं करता, लेट्स से, राइट? तो जब एवरेज आउट होता है उसका इफेक्ट, तो वी ऑलवेज इंश्योर कि आपके आईपी से जब भी ईमेल सेंड हो रही है तो उनका एक मिनिमम लेवल ऑफ एंगेजमेंट जो है वो ट्रैक हो रहा हो। एनी emails that are sent out from our platform are then calculated for their email health, also to ensure कि अच्छा ये जो इनके फीडबैक आई थी वो किस किस्म की आई थी, ताकि हम उन पे फिर एक्शंस ले सकें। जी फर्स्ट तो ये होता है कि एज ए ईमेल मार्केटर मैं ईमेल मार्केटिंग कर रही हूँ लास्ट 3 ईयर से, और मेलचिम से मैं कर रही हूँ और 2-3 और टूल यूज़ कर रही हूँ। तो ईमेल जंग में इसलिए जाता है कि ईमेल के अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे इमोजीज होते हैं जिनकी वजह से वो जंग में जाते हैं। ये रीज़न होता है कि बहुत सारे ईमेल एक्चुअली मेलचिम के अंदर आपको पता है कि हमें एक साथ, मतलब अगर आप फ्री यूज़ कर रहे हो तो 1000 to 25 ईमेल्स आप एक साथ भेज रहे हो, तो उनमें से ये होता है कि समटाइम सारे जंक में जाते हैं, समटाइम ये होता है कि कुछ जंक में जाते हैं, कुछ नहीं जाते हैं। जो कुछ नहीं जाते हैं और कुछ जाते हैं उसमें आईपी वाला इशू होता है, और जब सारे जाते हैं या फिर सीन होते हैं डायरेक्ट डिलीट होता है, समटाइम ये होता है कि उसमें भी नोटिफिकेशन दे रहा होता है कि इसमें वायरस है, तो वो फिर आईपी वाला इशू हो जाता है। अदरवाइज हमारी जो हम टेम्पलेट बना रहे होते हैं उसके अंदर जो वर्डिंग यूज़ करते हैं, लेट्स सपोज कोई ब्रांडिंग वाले जो कंपनीज ईमेल एड्रेसेस भेजते हैं, ज़्यादातर ये होता है कि जो कोल्ड लीड्स को ईमेल भेजते हैं उसके अंदर ज़्यादातर ये जंग में जाते हैं, और वो अपनी ब्रांड के ऊपर सुपर, हरी अप एंड सेव, इस टाइप की जो वर्ड्स होते हैं वो यूज़ करने से जंग में जाते हैं। मुझे ईमेल मार्केटिंग प्रो लग रही है। ये चीज़ें, You're absolutely right. ये उसके अंदर है। और दूसरा ये है सर कि फर्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि जो एपफ्लो है उसकी कॉम्पिटिटर कौन है आपके इनसाइड पाकिस्तान और पाकिस्तान से आउट? Okay. So inside of Pakistan, I haven't heard of a startup yet जो exactly ये कर रहे हो। अगर आप लोगों को पता है प्लीज लेट अस नो, हम भी चाहेंगे उनको एक्सप्लोर करें जरूर। इसके अलावा there are other companies that do this either in part or they do it with a lot of other things as well. For example, we know of Intercom, अगर आप लोगों को पता हो, Intercom एक widget है जो बहुत सारे businesses अपनी chat support के लिए use करते हैं। They also do personalized journey-driven emails. We know of Vero, we know of Encharge. So there are other products out there जो के similar problem solve करते हैं। मीन्स कि डायरेक्ट कॉम्पिटिटर आपके अभी तक मतलब मार्केट में नहीं है और इनडायरेक्ट ये है। ओके, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि जो एपफ्लो है, लाइक मेलचिम के अंदर हम एक साथ बहुत सारे ईमेल सेंड कर सकते हैं, तो एपफ्लो के अंदर क्योंकि आपकी बहुत सारी यूजर्स हैं और बहुत सारे यूजर्स को अपने एक साथ मेल सेंड करना है, तो उसके लिए क्या कोई इंटीग्रेशन है या आप क्या करते हैं उसके लिए? Appflows is built on the platform of MailMunch, or MailMunch has the
capability of sending millions of emails every month. तो चूंकि हम वही फाउंडेशन और वही सारी अपनी लेगेसी we're bringing it onto Appflows, तो sending millions and millions of emails at a time is no problem for us. वो तो हम बड़े सालों से कर रहे हैं. Thank you. So what I understand is कि सर्वर फिर आप लोगों का यूज होगा ईमेल भेजने के लिए. You're completely right. जो email sending, For Yeah. example, if I have an email from Bluehost, for example, and if I start using Appflow with the same, तो जो सर्वर है, email सर्वर है, वो Bluehost का यूज होगा या वो Appflow का यूज होगा? नहीं Bluehost का email server नहीं यूज होगा. What we'll ask you to do is set up some records Bluehost में, which will direct all of your traffic to our server. और email sending के लिए फिर हम अपना server यूज करते हैं to ensure कि जितनी emails हैं वो properly deliver हो रही है. तो for example, if I had to send 1 million email, उसकी cost क्या होगी Appflow की? अच्छा, Appflows की pricing हम number of email sends पे नहीं करते. So there's no cap on the number of emails that you can send. Appflows की pricing जिस तरह से हमने डिजाइन की हुई है, it's built on the number of monthly active users on your platform. Okay. So वो फिर different buckets में divided है और वो मैं फिर links वगैरह हम आप लोगों के साथ share करेंगे जहाँ पे detailed आपको pricing मिल जाएगी.